Hello, Rinki ma'am. Yes, ma'am. You can do the recording of your also, no? I've started recording. Yes, yes. Charusula, you also do. Rinki ma'am also will do the recording. Because Okay. live we are making now, fourth lecture is not coming. So you tell all the teachers to do the recording of the lectures also. Huh? Okay. 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 Your recording you start and stop. Okay. Very good morning, children. In the previous lecture, we had studied about verbs. We revised about the main verbs. In the today's lecture, we will revise about the auxiliary verbs. I know we have completed this part in the previous lecture, but a few points were remaining. So I will continue with that. Today we'll study about the auxiliary verbs. So auxiliary verbs, I'll write first the examples, which are the auxiliary verbs. Am, is, are, was, were, has, have, had, will, shall, would, should, can, would, may, might, must, ought, do, does, did. Children, these all are your auxiliary verbs. These auxiliary verbs play a very important role in framing the tense or framing the questions, or you can say command, order, everything. Now we'll see about the auxiliary verbs. There are two types of auxiliary verbs. The first one is your primary auxiliary verb, and the second one is your modal auxiliary verb. Now what is primary? Primary means main, important. Okay. So what is primary auxiliary verb? Primary auxiliary verb, it gives extra help to the main verb. So here, this is very important point to be noted, that the role of primary auxiliary verb is to give extra help. Now, in what sense? Why do we need extra help to the main verb? We'll see in the further slides. And modal auxiliary verbs, these add meaning. So these two are important role which each auxiliary verbs play. Now add meaning to the main verb by expressing possibility, ability, permission, obligation, and etc. So here, out of those auxiliary verbs, these are your primary auxiliary verbs. Am, is, are, was, were, has, have, had, do, does, and did. These are your primary auxiliary verbs. Now we'll see modal auxiliary verbs. Will, shall, would, should, can, could, may, might, must, ought to, need to, and have to. Now here children, यहाँ पर सिर्फ अगर have होगा, so that is your primary auxiliary verb, and with have to add होगा, that will become your modal auxiliary verb. We'll see the examples in the next slide. Now we'll see the examples of primary. I was reading a novel. So here reading is your main verb and was is your helping verb, primary auxiliary verb. Now this is your tense. Which tense is this? This is your progressive tense. Why progressive? Because here reading is your present participle form of the main verb read. Okay. And was comes in your past progressive tense. So I was reading a novel. It means this action was in progress in the past. Now next example, they had achieved their target. Now achieved, this is your main verb, and had, this is your primary auxiliary verb. Which tense is this? This is your past perfect tense.
and here achieve, this is in V3 form, past participle of achieve. Now we'll see the modal auxiliary verbs. Lack of rain could cause drought. Now here could is used to show possibility, okay, of drought in the future. Okay, now here cause is your main verb. Cause आपका first form में है, V1 first form of the main verb cause है. Second example, we should respect our elders. Now here should use किया गया है verb respect के साथ. So respect is your main verb, first form of the main verb, और उसके साथ use किया है should to show obligation, duty. It is our duty to respect our elders. Okay, compulsion. Now here children, this I had already revised you in the previous lecture. Now we'll continue with the few more examples. Now we'll see auxiliary verbs. Auxiliary verbs are in three forms. Three forms होते हैं. एक होता है to be form. Second is your to have form and to do form. So to be form में कौन कौन से auxiliary verbs आते हैं? Am, is, are, was, were, being, been and will be. These are your to be form. To be form मतलब ing आता है जिसमें. To have means has, have, had, having, will have. Okay, these are your V3 वाला. Next is to do. Does, do, did, will do. Now children, इसमें क्या नोटिस करने वाली बात है? इसमें ये है कि आपको जब भी फॉर्म्स यहाँ पर टू बी फॉर्म आया तो आप लोग देखोगे टू बी फॉर्म में मेन वर्ब का ऑलवेज फोर्थ फॉर्म यूज होता है. फोर्थ फॉर्म मीन्स आईएनजी. एम के साथ भी आईएनजी होता है, इज के साथ भी. सो टू बी फॉर्म मीन्स वो वाला फॉर्म जिसमें हम लोग मेन वर्ब में फोर्थ फॉर्म यूज करते हैं, प्रेजेंट पार्टिसिपल यूज करते हैं. टू हैव मीन्स जब ये ऑक्सिलरी वर्ब्स आएंगे तो यू विल यूज योर V3. You will use your participle, past participle form of the main verb. Now to do means when you will have these auxiliary verbs, you have to use V1. You will use V1. So these all are three forms of your auxiliary verbs: to be form, to have form and to do form. Now we'll see about the primary auxiliary verbs. Now primary auxiliary verbs, children, gives extra help to the main verb. Now how it helps the main verb, we'll see that. It is used with a main verb to help express main verbs tense, mood and voice. Children, यहाँ 3 points हम लोग को नोट डाउन करने की जरूरत है. फर्स्ट ऑफ ऑल, इट गिव्स हेल्प. किसको हेल्प करता है? मेन वर्ब को. क्या एक्सप्रेस करने के लिए? मेन वर्ब का जो टेंस, मूड और वॉइस, ये 3 चीजें हम लोगों को ध्यान देनी है कि ऑक्सिलरी वर्ब जो है, प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब है, व्हाट इज द रोल ऑफ दैट प्राइमरी मेन वर्ब. मेन वर्ब का मूड एंड वॉइस. Now be ready. Now it's your turn to interact with me. Now, Pranay, unmute yourself. Pranay, can you hear me? Now children, you have to raise your hand and you have to tell me about the tense. Tense के बारे में आपको जो भी पता है, you have to tell me that. Krish, Prerna, unmute yourself. Yes, ma'am. हाँ, Prerna, please tell me about. There are three types of tense.
tense means time. There are three types of tense. First is past tense, second is present tense, and third is future tense. And there are four types of each tense also, means four types of past tense, present tense, and future tense also. Very good, Prerna. Now you can mute yourself. Krish, unmute yourself. Krish, please tell Yes. me about the aspects of three tenses. जो three tense है उसके वो चार aspects कौन कौन से हैं? Krish, do you know about the aspects? वो types जानते हो आप? 4 types. Okay, Abdul. Abdul, unmute Yes, yourself. miss. Yes, miss. Okay, Abdul, Miss, please. सिंपल प्रेजेंट टेंस, सिंपल मतलब सिंपल टेंस, फिर उसके बाद मिस उसके सब टाइप बताना है ना? हाँ, you tell me whatever you know about the tense. आपको जो भी पता है आप मुझे बताइए. मिस देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ टेंस. फर्स्ट इज प्रेजेंट, फ्यूचर, पास्ट. मिस और इसमें भी चार चार सब टाइप्स होते हैं. जैसे कि मिस सिंपल, फिर उसके बाद में कंटिन्यूअस, फिर परफेक्ट, फिर परफेक्ट कंटिन्यूअस. Very good, Abdul. Thank you. So here, children, you all know that there are main three types होते हैं, और जो सब टाइप्स होते हैं उसको हम लोग एस्पेक्ट बोलते हैं. एस्पेक्ट, ये एक न्यू टर्म आप याद रखना, उसको एस्पेक्ट बोलते हैं. देयर आर 4 एस्पेक्ट्स. अभी 4 एस्पेक्ट्स बोला तो यू हैव टू से लाइक सिंपल, देन प्रोग्रेसिव, देन परफेक्ट एंड परफेक्ट प्रोग्रेसिव, और प्रोग्रेसिव को कंटिन्यूअस भी बोलते हैं. सो दीज आर 4 एस्पेक्ट्स: सिंपल, प्रोग्रेसिव, परफेक्ट एंड परफेक्ट प्रोग्रेसिव. ओके चिल्ड्रन, सो दीज आर योर 4 एस्पेक्ट्स हो गए. 3 टाइप्स के टेंस एंड 4 एस्पेक्ट्स. नाउ अबाउट वॉइस. Children, about voice, now you have to tell me. Yes, I have unmuted someone. Sonia. Sonia, unmute yourself. Yes, teacher. हाँ, वॉइस के बारे में बताइए, आपको क्या पता है? Teacher, I have raised hand for 10. अच्छा, you have raised your hand for tense. Now, so what about voice? वॉइस के बारे में थोड़ा आपको कुछ पता है वो बताइए. ओके, ठीक है, हम लोग अभी मनस्वी will tell me about voice. मनस्वी. Passive voice और and पैसिव वॉइस क्या होता है? टीचर मतलब एक सेंटेंस देते हैं उसको चेंज करके लिखना पड़ता है पैसिव वॉइस में. तो जो सेंटेंस दिया रहता है वो कौन से वॉइस में होता है? सिंपल वॉइस. नो, एक्टिव एंड पैसिव वॉइस. यस यस टीचर. What do you know about active and passive voice? क्या होता है उसमें? टीचर उसमें टेंसेस चेंज करने होते हैं. टेंसेस? यस, मतलब पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस या प्रेजेंट टेंस. वेट, अभी हम दूसरे स्टूडेंट्स का भी आंसर सुनेंगे. ओके, यू म्यूट योरसेल्फ. साक्षी. साक्षी, Yes, miss. please tell me about voice. Ma'am, there are two types of voice.
One is active voice and second is passive voice. And active voice means that the sentence has a subject that acts upon its verb. And Okay. passive voice means subject is a recipient of a verb's action. Correct. Very good. So we have, you have answered correctly. Now I want someone else also to explain a little bit. Manasvi? Manasvi? What Yes. do you, please tell me about voice. Active voice teacher means subject. Hmm. Subject plus use can main verb. Acha, wait, Manasvi. You mute yourself, Manasvi. Prerna, unmute yourself. Yes, ma'am. हाँ. Ma'am, voice of a verb describe the relationship between action that verb is expresses, and ma'am, there are two types of voice. First is active voice and second is passive voice. Hmm. And I will have a tense that will written in simple form. Okay. Either I will have a active voice sentence. I will have to change this sentence into passive voice. अच्छा ठीक है. Thank you. Now children, about tense तो correct बताया अब्दुल ने. About voice also students ने सही बताया है. Somewhere voice में क्या है children कि आप थोड़ा explanation part जो है उसमें आपको ये ध्यान देना है. Active voice का मतलब क्या होता है जिसमें subject action को perform करता है. Okay? जैसे I drink water. तो मैंने परफॉर्म किया एक्शन. मेरा एक्शन क्या था? ड्रिंकिंग का. तो मैं यहाँ पर एक्टिव हूँ. एक्टिव कौन है? सब्जेक्ट जब एक्टिव होगा एक्शन को परफॉर्म करेगा, दैट इज एक्टिव वॉइस. और पैसिव वॉइस में क्या होता है? सब्जेक्ट जो है वो एक्शन को रिसीव करता है. ओके जैसे वाटर इज ड्रंक बाय मी. सो हियर वाटर एक्शन क्या कर रहा है? एक्शन कर रहा है क्या वाटर? नहीं, वाटर एक्शन नहीं कर रहा है, रिसीव कर रहा है एक्शन को. दैट्स व्हाई वो पैसिव हो जाता है. एक्टिव मतलब जो एक्शन में है, पैसिव मतलब जो रिसीव कर रहा है. तो एक्टिव एंड पैसिव वॉइस में प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब्स का यूज होता है. नाउ चिल्ड्रन, ये जो एक वर्ड है मूड, मूड, ये इसका मतलब ये है कि जो स्टेटमेंट है उसका पर्पस क्या है. आइदर वो क्वेश्चन है और स्टेटमेंट है और सरप्राइज करने वाला सेंटेंस है. ओके कमांड है, रिक्वेस्ट है, कुछ भी हो सकता है. दैट इज योर मूड. तो हम लोग जो टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस पढ़ते हैं ना, पॉजिटिव नेगेटिव में, डेक्लेरेटिव सेंटेंस, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, ऑल दीज आर योर मूड. मूड मीन्स पर्पस ऑफ द सेंटेंस. क्या है पर्पस? आइदर क्वेश्चन करना पर्पस है और कोई फीलिंग को एक्सप्रेस करना पर्पस है. सो देयर वी विल यूज प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब्स. नाउ विल सी ईच पॉइंट इन डिटेल. नाउ विल सी अबाउट द टेंस. अभी हम लोग एग्जाम्पल देखेंगे auxiliary verbs expressing tense कैसे express करता है. She was waiting for an hour. Okay. She is waiting in the hall. She will be waiting outside. Now children, now we have to study these three sentences. Now you all have to raise your hand and जो भी मैं question पूछूंगी you will answer. अब मेरा question क्या है? After that only you will come to Nidhi. Nidhi, unmute yourself. Yes, teacher. Okay, Nidhi, ये 3 सेंटेंसेस में वर्ब का कौन सा फॉर्म यूज किया गया है? मेन वर्ब का कौन सा फॉर्म है? निधि अनम्यूट करो आप.
आस्था, आस्था अनम्यूट योरसेल्फ। टीचर वेटिंग। हाँ वेटिंग, कौन सा फॉर्म में है बेटा ये? मतलब फर्स्ट फॉर्म है, सेकंड फॉर्म है, थर्ड है कि फोर्थ है? आस्था अनम्यूट करके आप रखो। टीचर हाँ फोर्थ फॉर्म। फोर्थ फॉर्म को और क्या बोलते हैं? हाँ फोर्थ फॉर्म को और दूसरा नाम क्या है? विच पार्टिसिपल? मेरे याद नहीं है टीचर। प्रेजेंट पार्टिसिपल। चिल्ड्रन ये जो टर्म्स है वो आपको पता होने चाहिए। दिस इज योर प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म। ओके आस्था, व्हाट अबाउट ऑक्सिलरी वर्ब्स? मुझे ऑक्सिलरी वर्ब्स बताओ सेंटेंस में। आस्था अनम्यूट योरसेल्फ। ओके शिवम, शिवम अनम्यूट योरसेल्फ। टीचर वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी। वेट, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी नहीं है ये। मैं पूछ रही हूँ ऑक्सिलरी वर्ब्स कौन कौन से हैं? Miss, in first sentence, the was is auxiliary. was, अच्छा, then, In second sentence is हाँ, then, and in third sentence will. not will, it's will be. ये है आपका ऑक्सिलरी वर्ब। ओके सो नाउ चिल्ड्रन, व्हाट अबाउट दिस टेंस? टेंस कौन सा है? समृद्धि, समृद्धि अनम्यूट योरसेल्फ। Miss, may I? व्हाट्स योर नेम? Sakshi Maria. हाँ ओके साक्षी। Miss, first sentence is in past tense. कौन सा पास्ट? She was waiting for an answer. Present past. Sorry. Miss, simple. अगेन रीथिंक, फिर से सोचो, देन टेल मी। पास्ट है ओके, बट कौन सा एस्पेक्ट है? एस्पेक्ट फोर्थ है ना, सिंपल, प्रोग्रेसिव, परफेक्ट एंड परफेक्ट प्रोग्रेसिव। तो ये कौन सा एस्पेक्ट है चारों में से? Yes, Miss, progressive. Very good. So first one is in past progressive tense. What about the second one? Miss, it is simple past tense. Sorry, sorry, Miss. Think. Present progressive. Very good. What about the third one? Will be. Future progressive. Okay, future progressive tense. Very good, children. So the first, all these are tense. जो भी ये sentences दिए गए, all are in which aspect? Progressive aspect में है. Okay? और progressive tense में V4 use होता है. Present participle form of the main verb होता है. Now see children, हर जगह पे आप auxiliary verb different देख रहे हो. Every जो aspect है, tense जो है present, future और जो past है, ये 3 tenses में aspect तो सबका same है, progressive aspect है. But main tense change है. So according to tense, auxiliary verbs change होते हैं. तो here एक past का action progressive में है, एक present में कोई action है जो in progress है, और एक future का है. So here according to tense, ये जो auxiliary verbs हैं वो change होते रहते हैं. Now we'll see next example. She had finished it before we arrived. She has finished it already. She will have finished it by then. Now children, Ankit Yadav, unmute yourself. Yes, ma'am. Ankit, please tell me here which is your main verb and which one is your auxiliary verb sentence में. Ma'am, main verb is finished.
So everywhere, this is your main And verb. Hmm? yes, ma'am. What And the about auxiliary word is had, has, will have. correct? Now please tell me, अंकित, ये जो मेन वर्ब है कौन से फॉर्म में है? Yes, Which ma'am. form? ये finished है वो कौन सा फॉर्म है? Ma'am, first sentence is Wait, अंकित. My question is, it, main verb जो है finished. she had perfect, present perfect. अंकित wait, my question is, ये जो finished है वो कौन से फॉर्म में है? वो मेन वर्ब का कौन सा फॉर्म है? 4 फॉर्म्स होते हैं ना, प्रेजेंट होता है, पास्ट होता है, Yes, ma'am. पास्ट. Third form. थर्ड फॉर्म को क्या बोलते हैं? कौन सा पार्टिसिपल? पास्ट Perfect पार्टिसिपल. participle. No, it's past participle. Oh, sorry. Past participle. हाँ, this is very important. Past participle, ये वर्ड याद रखना है आपको. ओके अंकित, नाउ फर्स्ट टेंस जो है मुझे बताइए, फर्स्ट सेंटेंस का टेंस. ओके विजय. विजय, यस मिस. फर्स्ट जो सेंटेंस है कौन से टेंस में है? पास्ट परफेक्ट. वेरी गुड. व्हाट अबाउट द सेकंड वन? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस. वेरी गुड. थर्ड? फ्यूचर परफेक्ट टेंस. वेरी गुड. तो विजय, इट मीन्स कौन सा एस्पेक्ट है इसमें? टेंस का कौन सा एस्पेक्ट है? परफेक्ट. ओके, परफेक्ट है, सब परफेक्ट टेंस में है और मेन टेंस है प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर. नाउ तो हियर, यहाँ पर आप देखोगे मेन वर्ब तो सेम है, सब जगह पर आप सेम देख रहे हो, थर्ड फॉर्म है, पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म. बट अकॉर्डिंग टू द टेंस ऑक्सिलरी वर्ब्स चेंज हो रहे हैं. मतलब हर जगह पर अकॉर्डिंग टू द टेंस प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर ऑक्सिलरी वर्ब्स चेंज हो रहे हैं. So this is your second example. Now we'll see the next example. She had been studying before the incident. She has been studying. She will have been studying for a month at that point. Now I will request Sanu. हेलो गुड मॉर्निंग मैम. गुड मॉर्निंग. सानू, मुझे बताइए आप यहाँ पर मेन वर्ब क्या है? मैम यहाँ पे मैम मेन वर्ब मैम हैड बीन है और हैज बीन और विल हैव बीन. अच्छा ठीक है, तो ऑक्सिलरी वर्ब क्या है? मैम ऑक्सिलरी वर्ब भी मैम हैड बीन. क्या मैम मेन वर्ब? मैम ऑक्सिलरी मैम मेन वर्ब जो मैम वो बीन है सब में, और जो मैम ऑक्सिलरी वर्ब है वो हैड, हैज और विल हैव. अच्छा सानू, प्लीज टेल मी मेन एग्जाम्पल के थ्रू. हाँ मैम. एग्जाम्पल के थ्रू आप बताओ मेन वर्ब क्या होता है? मैम इसमें ओके वेट ओके, आई विल आस्क अदर चिल्ड्रन. ओके, अब बाकी बच्चों को पूछती हूँ, देन वी विल कम टू यू. ओके मैम. सलोनी. Yes, miss. Good morning, miss. गुड मॉर्निंग. सलोनी, प्लीज टेल मी अबाउट द मेन वर्ब. व्हाट इज मेन Miss, वर्ब? main verb is studying, अच्छा ठीक है, स्टडिंग and आपका मेन वर्ब. auxiliary verb is had been, has been, will have been. ठीक है. नाउ प्लीज टेल मी सलोनी कि स्टडिंग है वो कौन से फॉर्म में है, वर्ब का कौन सा Fourth फॉर्म? form है. फोर्थ फॉर्म को और क्या बोलते हैं? Um, फोर्थ फॉर्म को कहते हैं प्रेजेंट पार्टिसिपल. ओके सलोनी, yes, so miss. fourth form is also known as present participle. Now
विच एस्पेक्ट, ये कौन सा एस्पेक्ट है? हैड बीन, हैज बीन, विल हैव बीन, और प्लस फोर्थ फॉर्म ऑफ द मेन वर्ब कौन से टेंस में आता है? Miss, may I? वेट, आदित्य, हेलो, गुड मॉर्निंग मैम। हाँ आदित्य, माय क्वेश्चन इज, ये कौन से टेंस में है सब? मैम दिस इज पास्ट परफेक्ट प्रोग्रेसिव टेंस। ओके, पास्ट परफेक्ट प्रोग्रेसिव, अच्छा। देन सेकंड, मैम सेकेंड का प्रेजेंट परफेक्ट पार्टिसिपल आएगा, प्रोग्रेसिव सर। हाँ अच्छा, वेरी गुड। थर्ड, फ्यूचर परफेक्ट प्रोग्रेसिव मैम। वेरी गुड। तो ये जो है ना परफेक्ट प्रोग्रेसिव एस्पेक्ट है, मतलब परफेक्ट प्रोग्रेसिव टेंस में एवरीवेयर यू विल हैव योर प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म ऑफ द मेन वर्ब, V4 होता है, ओके, फोर्थ फॉर्म ऑफ द मेन वर्ब होता है। बट व्हेन वी विल सी दिस पार्ट, ऑक्सिलरी वर्ब का जो पार्ट देखेंगे, तो अकॉर्डिंग टू टेंस, प्रेजेंट टेंस में अलग होता है, पास्ट टेंस में डिफरेंट होगा, और फ्यूचर टेंस में डिफरेंट होगा। तो ऑक्सिलरी वर्ब्स टेंस के अकॉर्डिंग चेंज होते रहेंगे। दो उनका फॉर्म अभी हम लोग देखेंगे, सिंपल प्रेजेंट टेंस में V1 होता है, ओके, सिंपल पास्ट टेंस में वी हैव V2, सॉरी पास्ट टेंस में V2 होता है, और हम लोग देखेंगे हमेशा V4 प्रोग्रेसिव टेंस में होता है। आइदर वो प्रोग्रेसिव परफेक्ट प्रोग्रेसिव भी हो सकता है और प्रोग्रेसिव भी हो सकता है, और V3 जो है परफेक्ट टेंस में होता है। एवरीवेयर यू विल सी दैट V3 पार्टिसिपल जो है पास्ट पार्टिसिपल वो परफेक्ट टेंस में होता है। सो अकॉर्डिंग टू टेंस ऑक्सिलरी वर्ब्स चेंज होते हैं। नाउ विल सी अबाउट द वॉइस। वॉइस में वी हैड, स्टूडेंट्स प्लीज म्यूट योरसेल्फ, सभी बच्चे अपने आप को म्यूट करेंगे। समृद्धि, समृद्धि अनम्यूट योरसेल्फ। यस मैम। हाँ समृद्धि, वॉइस, मैं अभी अब 2 सेंटेंस रख रही हूँ, यू हैव टू एक्सप्लेन मी अबाउट द वॉइस। क्या दिया है सेंटेंस में? द फर्स्ट सेंटेंस इज द कार वॉज ड्रिवन बाय हिम, विच वॉइस इज दिस? समृद्धि, पैसिव वॉइस। हाँ कैसे पता चला आपको पैसिव वॉइस है? बिकॉज मैम ड्राइविंग। ड्रिवन लिखा है इसलिए पैसिव वॉइस है? हालिमा, हालिमा अनम्यूट योरसेल्फ। Yes, ma'am. हाँ अभी समृद्धि ने कहा ड्रिवन है इसलिए पैसिव वॉइस है। क्या ऐसा हो सकता है कि ड्रिवन लिखा है इसलिए पैसिव वॉइस है? यही एक कंडीशन है पैसिव वॉइस का।
ओके, तो हालिमा, अनम्यूट योरसेल्फ. यस मैम. हाँ, हालिमा, सिर्फ ये ड्रिवन लिखा है इसीलिए ये पैसिव वॉइस है क्या, कि और कोई कंडीशन है इसकी? मैम वॉज की वजह से, वॉज द कार वॉज ड्रिवन. वॉज है इसलिए और ड्रिवन इसलिए ये पैसिव वॉइस है. उनको तो वॉज. ओके, वेट, निधि. यस टीचर. हाँ, व्हाई दिस सेंटेंस इज इन, व्हाई डू यू थिंक दैट दिस इज इन पैसिव वॉइस, कैसे पता चला आपको? क्योंकि टीचर वहां पे वॉज है ना, वॉज ड्राइवन, द कार वॉज ड्राइवन बाय हिम, इसीलिए है. या फिर बाय हिम. वेट, ओके, सो चिल्ड्रन, पैसिव वॉइस क्या होता है? व्हेन वी विल सी द, व्हेन वी विल एनालाइज दिस सेंटेंस, तो क्या यहाँ पर क्या है? द कार है आपका सब्जेक्ट, ओके, और वॉज ड्रिवन ये आपका वर्ब है. अभी मैं ये नहीं बोलूंगी ऑक्सिलरी वर्ब क्या है, मेन वर्ब क्या है. आई विल डिस्कस दिस लेटर ऑन. एंड नाउ हियर बाय एंड हिम. हिम यहाँ पर क्या है? आपका ऑब्जेक्ट है. नाउ द कार वॉज ड्रिवन बाय हिम. इट मीन्स ये सेंटेंस में क्या है? सब्जेक्ट एक्शन को परफॉर्म नहीं कर रहा है, एक्शन को रिसीव कर रहा है. कार को ड्राइव किया जा रहा है, कार खुद को ड्राइव नहीं कर रहा है. सो व्हेन सब्जेक्ट इज रिसीविंग दैट एक्शन, ये ड्रिवन का एक्शन सब्जेक्ट रिसीव कर रहा है, उसके ऊपर ये एक्शन किया जा रहा है, इसीलिए ये क्या है? रिसीवर है. सब्जेक्ट क्या है? रिसीवर है. तो ये पैसिव है. और किसने कार ड्राइव किया है? ऑब्जेक्ट ने. हिम जो है, हिम ने कार ड्राइव किया है. एक्शन परफॉर्म कौन कर रहा है? हिम. एक्शन रिसीव कौन कर रहा है? कार. तो जब सब्जेक्ट एक्शन को रिसीव करता है तो इसका मतलब पैसिव वॉइस है वो. और यहाँ पर बाय यूज किया जाता है पैसिव वॉइस में. बट हमेशा आपको बाय वर्ड से आपको पहचानना नहीं है, वो एक कंडीशन है. बट आपको सेंटेंस को एनालाइज करना चाहिए कि जो सब्जेक्ट है क्या वो एक्शन परफॉर्म कर रहा है? नहीं, वो एक्शन रिसीव कर रहा है, उसके ऊपर एक्शन परफॉर्म किया जा रहा है. दैट्स व्हाई इट इज योर पैसिव वॉइस. सेकंड में सेंटेंस में देखेंगे, स्टूडेंट्स ये आपका सब्जेक्ट है, वर हेल्प ये आपका वर्ब है, बाय ऐड किया गया है, एंड हर. अब यहाँ पर क्या है? स्टूडेंट्स एक्शन को रिसीव कर रहे हैं. हेल्प जो एक्शन है वो किसको मिल रहा है? हेल्प किसको मिल रही है? स्टूडेंट्स को. और ये एक्शन किसने किया है? ऑब्जेक्ट ने किया है. मतलब कोई गर्ल है, कोई हर जो फेमिनाइन जेंडर है, उसने स्टूडेंट्स की हेल्प की है. यहाँ भी आप देखो, सब्जेक्ट एक्शन को परफॉर्म नहीं कर रहा है, एक्शन को क्या कर रहा है? रिसीव कर रहा है. दैट्स व्हाई दिस इज योर पैसिव वॉइस. जब सब्जेक्ट एक्शन को रिसीव करता है, इट मीन्स योर पैसिव वॉइस. और जब सब्जेक्ट एक्शन को परफॉर्म करता है, इट मीन्स योर एक्टिव वॉइस. एक्टिव का मतलब क्या है? इन एक्शन. सब्जेक्ट एक्शन में होगा, इट मीन्स योर एक्टिव वॉइस. सब्जेक्ट इनएक्टिव होगा, पैसिव होगा, परफॉर्म नहीं करेगा एक्शन को, मीन्स योर पैसिव वॉइस. तो नाउ योर पैसिव वॉइस है, सब्जेक्ट डज नॉट परफॉर्म एक्शन ऑफ द वर्ब. ये जो वर्ब है उसका एक्शन परफॉर्म नहीं कर रहा है बट रिसीव कर रहा है. ओके, तो योर वॉइस में भी आपका ऑक्सिलरी वर्ब चेंज होता है. नाउ चिल्ड्रन, आप यहाँ पर देखोगे, वॉज ड्रिवन ये V3 है. ओके, वर हेल्प ये भी V3 है. दोनों जगह पर V3 है, बट दोनों का ऑक्सिलरी वर्ब क्या है? डिफरेंट है. क्यों डिफरेंट है? बिकॉज सब्जेक्ट है सिंगुलर में, कार क्या है? सिंगुलर है, इसलिए उसके साथ वॉज यूज किया गया है. सब्जेक्ट प्लूरल फॉर्म में है तो उसके साथ वर यूज किया गया है. दोनों पैसिव वॉइस में है चिल्ड्रन, दोनों ही पैसिव वॉइस में है. दोनों का टेंस भी सेम है, बट दोनों के सब्जेक्ट्स क्या है? जो सब्जेक्ट का नंबर है वो सिंगुलर और प्लूरल नंबर है. तो सिंगुलर के साथ वॉज यूज हुआ है, एंड विथ प्लूरल कौन सा ऑक्सिलरी वर्ब दिया गया है? वर. तो अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट का नंबर सेंटेंस में चेंज होता है. नाउ विल सी अबाउट मूड. मूड मीन्स पर्पस ऑफ द सेंटेंस. डू यू विन?
डू यू विन, ये क्या इंडिकेट कर रहा है? अंजू, अंजू अनम्यूट योरसेल्फ. यस टीचर. अंजू, डिड यू विन, ये क्या बता रहा है आपको? क्या इसका पर्पस क्या है? कि आप जीत गए. बता रहा है या पूछ रहा है? पूछ रहे. तो क्या होता है फिर सेंटेंस का टाइप में? कौन जीता भाई? ओके अंजू, सो यहाँ वेरी गुड क्वेश्चन. सो दिस इज योर इंटरोगेटिव. इंटरोगेटिव फॉर्म में क्वेश्चन पूछते हैं उसको इंटरोगेटिव बोलते हैं. वेरी गुड. नाउ यू कैन म्यूट योरसेल्फ. तो यहाँ पर क्या मूड है? क्वेश्चन का मूड है. क्वेश्चन बता रहा है वहां पर. नाउ डोंट फॉरगेट योर वॉलेट. आदित्य, आदित्य अनम्यूट योरसेल्फ. यस मैम. हाँ, डोंट फॉरगेट योर वॉलेट. इसका क्या दिख रहा है यहाँ पर? जो भी मूड है. Ma'am, it's giving order to not to forget, and it is imperative sentence. इम्परेटिव. वेरी गुड, वेरी गुड. तो इम्परेटिव फॉर्म में है और ऑर्डर दे रहा है. वेरी गुड. सो इम्परेटिव सेंटेंस यहाँ पर ऑक्सिलरी वर्ब आप देख रहे हो ना, यहाँ पर ऑक्सिलरी वर्ब देखो, डिड यूज किया गया है. यहाँ पर नेगेटिव फॉर्म है, सेंटेंस नेगेटिव है और कमांड दिया जा रहा है कि डोंट फॉरगेट योर वॉलेट. नाउ so according to mood, imperative, according to command, request, question, declarative statements, expression, so वो change होते रहते हैं auxiliary verb. Now we'll see about model auxiliary verb. मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब का पर्पस क्या? ऐड मीनिंग. क्या इंडिकेट करता है? आइदर नेसेसिटी, पॉसिबिलिटी, इंटेंशन, एबिलिटी एंड सो ऑन. मेनी मोर आर देयर. और बहुत सारे एग्जांपल्स हैं. नाउ विल सी द एग्जांपल्स. यू कैन रीड. नाउ हियर V1 of auxiliary verb के साथ always you will have your first form of the main verb. You can read. This shows ability. यहाँ पर can auxiliary verb यूज किया गया है, वो ability बता रहा है. रितिका must visit the library. ओके, यहाँ पर जो must है वो क्या बता रहा है आपको? necessity. I have to submit my project by tomorrow. यहाँ स्टूडेंट्स have to है और हम लोग हैव और वर्ब का थर्ड फॉर्म टेंस में यूज करते हैं. बट आप यहाँ पर देखोगे हैव टू के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है सबमिट. दिस इज योर मॉडल ऑक्सिलरी. हैव टू क्या है? यहाँ पर मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब है. एंड दिस सेंटेंस शोज नेसेसिटी. वी ऑट टू फाइट फॉर आवर कंट्री. तो यहाँ पर हियर ऑट टू, दिस इज योर मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब और उसके साथ जो फाइट है वो V1 है, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द मेन वर्ब. And this ought to मतलब ड्यूटी बता रहा है, obligation, that we must fight for our country. This is our duty to fight for our country. So auxiliary verbs are clear now. उसके functions, ये जो functions है children, we will discuss in later lectures in detail. But only my purpose is to tell you about model auxiliary verbs. Model auxiliary verbs के साथ V1 होगा. Always you will have first form of the main verb. Now we'll identify model auxiliary verb. Children, quickly we will do this activity. Rehan Sheikh. Rehan Sheikh, unmute yourself. Okay, Nitish. Is primary auxiliary verb. हाँ, was is your primary auxiliary verb. Very good. Prerna. Ma'am, were is primary auxiliary verb. Okay. Now, Aditya. Aditya Diksha. Yes ma'am. Identify. Have. Have क्या है? Primary auxiliary से. Oh, very good. Prerna. Yes ma'am. Your question. No ma'am. Could is ma'am model auxiliary verb. Very good.
Ma'am, हाँ, I you can. want to see last slide, ma'am. Can I complete I this have to one take and then this. I'll. Okay, ma'am. Okay. Okay, Abu, unmute yourself. अबू, आपका क्वेश्चन है दे हैड टेकन हिज बुक। यहाँ पर आप मुझे बताओ प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब है या मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब है? अबू क्विकली। हैड क्या है? वेट अबू। सानू मिश्रा। हाँ मैम, हेड इज अ प्राइमरी ऑक्सिलरी। वेरी गुड। नूर अनम्यूट योरसेल्फ। महेश सिंह। यस मैम। आई एम सिटिंग बिसाइड माई फ्रेंड, इसमें आप मुझे बताओ एम क्या है? ऑक्सिलरी वर्ड। कौन सा? प्राइमरी। वेरी गुड। इनायत अली। दे माइट कम नेक्स्ट वीक। यस मैम। इसमें आप बताओ। माइंड। माइंड नहीं, इट्स माइट। क्या है ये माइट? प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब्स। नो। प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब में आप फॉर्म्स देखते हो, डिफरेंट फॉर्म्स। यहाँ पर देखो V1 है। दे माइट कम नेक्स्ट वीक में पॉसिबिलिटी बता रहा है, तो दिस इज योर मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब। यस यस। अभिषेक। अनम्यूट योरसेल्फ। अब्दुल। यस मिस। हाँ, योर क्वेश्चन। रिया डज नॉट नीड एनी हेल्पिंग। मिस डज नॉट है, ये क्या है? मिस ये मतलब नेगेटिव में बताया है, और फिर मिस ये है, मिस ये प्राइमरी है। वेरी गुड अब्दुल। थैंक यू मिस। मिस आप बहुत अच्छे तरीके से पढ़ा रहे हैं। थैंक यू। नितेश प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ। Yes, me didn't is primary auxiliary verbs. पूरा सेंटेंस पढ़ो आप। He didn't play heed to my words. Yes, miss. Model auxiliary verbs. नितेश, ये क्या लिखा है जो मैं अंडरलाइन कर रही हूँ? Pay. हाँ, आपने प्ले क्यों पढ़ा? He didn't pay heed to my words, तो यहाँ पर क्या है आप बताइए? Didn't is auxiliary verbs. कौन सा ऑक्सिलरी? Primary auxiliary. ओके, आप डाउटफुल हो, देन यू रिवाइज। हाँ, ये चैप्टर आप रिवाइज कर लेना बाद में। करेक्ट आंसर सही है, बट यू आर नॉट कॉन्फिडेंट। You must have confidence while you are answering. Okay, now. Yes, ma'am. It's 8:50. Can you wind up? Ma'am, only 3 sentences are there. Can I? Yes. Can you please tell me? Mahesh? Yes ma'am. Can you please tell me? Can. क्या है ये can? Primary auxiliary word. Mahesh? Yes Can ma'am. you please tell me? Okay? Can you please tell me? Yes. This is your model auxiliary verb. Can model auxiliary में आता है. Okay. Sorry ma'am. Ability के लिए पूछ रहा है ना कि can you please tell me? Are you able to tell me? So that's why this is your auxiliary verb, but Sorry. model auxiliary verb. Sorry. Okay. Pragati.
Children, please be quick. Pragati. Okay, Vijay. Yes, ma'am. Okay, Pragati. Pragati, your question is, he may reach on time. नहीं, क्या है ये? Primary verb. प्राइमरी है. He may reach on time. Model auxiliary. Very good. This is your model auxiliary verb. Last question. I should complete my presentation. I will ask Vijay. Vijay? Vijay, unmute yourself quickly. इसमें आप मुझे बताओ ऑक्सिलरी वर्ब कहाँ पर है? should कौन सा ऑक्सिलरी वर्ब है? should हाँ, कौन सा, प्राइमरी और मॉडल? दिस इज योर मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब. क्यों? क्योंकि आपको ये ऑब्लिगेशन है कि आपको अपना प्रेजेंटेशन आपको कंप्लीट करना है. सो चिल्ड्रन, विद दिस वी हैव कंप्लीटेड टुडेज सेकंड पार्ट वर्ब का, जिसमें हमने ऑक्सिलरी वर्ब के बारे में पढ़ा. थैंक यू सो मच चिल्ड्रन फॉर अटेंडिंग टुडेज लेक्चर. हैव अ नाइस डे. Hello, Rinki ma'am, you have stopped? Yes, ma'am, I have completed. Thank you so Okay, much. thank you. Thank you so much. Thank you so much.